کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. لیکن پھر بھی خصوصی ملاقات جو ہے نا انجینئر صاحب نے آپ لوگوں سے انتظامیہ سے مل کے ریکویسٹ کر کے میں نے ان کو ملنا ضرور ہے. یہی فرق ہے. اگر اس جگہ باقی علماء کرام ہوتے تو انہوں نے عوام کو چھٹی کروا دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. عوام کیا آئی یا چلی جائے. انشاءاللہ نیکسٹ ابھی تو فرسٹ ٹائم ہم آئے ہیں اور آلموسٹ ہمارا 2-3 منتھ سے بن رہا تھا ذہن کے مطلب ہم اکیڈمی میں آنا ہے. تو ابھی تو خیر پرینک ہی ہوا ہے. ہم لوگ تو نہیں نا یہ کام کر سکتے. جب حافظ صاحب کا کچھ نہیں نہ بنا تو لاسٹ پہ انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا کہ آپ اپنے مسلمان ہونے کی دلیل دو. اللہ ہو سارے بڑے بڑے مولوی دیکھا میں نے فتنہ ہے گمراہ نہیں ہر فرقے دی جڑی گمراہی ہے وہ کڈ کے انہوں نے اگے رکھ چھڈی ہے. یہ تے گمراہی ہے، یہ چیزاں ٹھیک نہیں. تو اس سے تو خوش ہو نا کہ ملاقات تو کر رہے ہیں. ہم ملاقات ہو گئی، لیکن جو درد تھا وہ تھا نا کہ علی بھائی کو دیکھیں گے. لیکن آپ لوگوں کے لیے چھوٹ ہے نا، آپ لوگ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں. بہت 26 گھنٹے کا سفر ہے. 27 گھنٹے سفر کرنا ہے، بہت تھک گئے. پہلے دیوبندی مولوی کہتا ہے بھائی انجینئر کو مت سنو، یوٹیوب پہ مولوی آتے ہیں یا فضول باتیں کرتے ہیں. پھر اس نے جو ہے نا بکس میں آ کے حضرت امیر معاویہ اور جو ہے نا ہند جو تھی ان کے فضائل سنانا شروع کر دی جمعہ خطبوں میں. میں پیر ثاقب رضا مصطفی سے ملا ہوں، طارق جمیل سے ملا ہوں اور اس بندے سے ملا ہوں، لیکن انہوں نے اس طرح کا پروٹوکول نہیں کیا جو مجھے یہاں پہ ملا ہے. بیسیکلی تحریک منہاج القرآن سے ہے. صحیح ہو گیا. تو جو اہل بیت کے اوپر جو بنو امیہ کا بڑا آپریشن محمد علی صاحب نے کیا ہے نا، وہ بڑے بڑے علماء نہیں کر سکے ایسے. تو اہل بیت کے ساتھ جو ان کا ایک رشتہ ہے، اس کی وجہ سے میرا بھی جو ہے نا وہ ان کے ساتھ لگاؤ بڑا ہے. اس کے بعد مین چیز یہ کہ انجینئر صاحب ہماری بات ویریفائی کر سکتے ہیں قرآن سے، حدیث سے. وہ قرآن حدیث ان کے پیچھے قرآن حدیث کھڑی ہے جس کے بیس پہ وہ یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں. یہ انجینئر بھی ہیں اور انجینئرنگ انہوں نے کی ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دین کے فلاح کے لیے بھی بہت کام کیا. اور ہم دیکھا جائے کہ ان کو انجینئرنگ سے اتنی شہرت اور اتنی عزت نہیں ملی جتنی دین کی وجہ سے ملی، جتنی دین کی وجہ سے ملی. آج ملاقات تو ہو گئی انشاءاللہ، لیکن وہ جو سوچا ہوگا کہ 2 گھنٹے بیٹھیں گے، 2.5 گھنٹے بیٹھیں گے، ہمارا سوال بھی ڈریس ہوگا، آج کوئی اسپیشل ٹاپک بھی ڈسکس ہوگا، وہ کچھ تو نہیں ہوگا کیونکہ انتظامی معاملات ہیں ان کو ساتھ لے کے چلے. تو پریشانی تو نہیں ہوئی، کوئی اداسی تو نہیں ہوئی. باقی ہاں ایک بات ہے کہ دل دکھا آج. لیکن کرے جتنا علی بھائی کو دیکھنا چاہتے تھے نا لائیو وہ نہیں دیکھ سکے. بہت دکھ ہوا. ملاقات کر رہے ہو نا؟ ملاقات کریں گے انشاءاللہ، وہ سب سے اہم ہے. ملی ہے. اچھا بابا جدی کو کبھی ملے ہو؟ نہیں. کیوں؟ فضان مدینہ بہت دفعہ مل نہیں پایا. وہ کیوں؟ سیکیورٹی کا بہت مسئلہ ہوتا ہے، ان کو تھوڑا سنبھال کے رکھتے ہیں. ان کو قریب نہیں جانے دیتے ان کے، مگر قریب سے وہ رات گئے اتنے قریب دیکھا ہے شیشے کے باکس کے اندر بند ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم سارے. تو یہ ان کا ایک بڑا پن ہے اور ان کی مہمان نوازی کا ایک انداز ہے. تو میں تو سراہوں گا اس بات کو بھی کہ انہوں نے کسی بھی طرح سے اپنے آنے والوں کو مایوس نہیں کیا، چاہنے والوں کو مایوس نہیں کیا. تو اللہ کریم ان کی حفاظت کرے اور اہل بیت کی شان بیان کرنے کی اور توفیقات میں برکتیں کرے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی محمد فرحان قریشی. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں 206 سیشن آج چکے انتظامیہ کی طرف سے. محرم کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ انتظامی معاملات کی وجہ سے درس کی پابندی تھی اور انجینئر صاحب کی خصوصی ریکویسٹ سے آج جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے صرف فوٹو سیشن صرف ہوا ہے. اور ابھی جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں اب ان سے کچھ بات کرتے ہیں. تو آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا؟ حافظ تجمل حبیب. حافظ صاحب کدھر سے؟ فیصل آباد، بیسیکلی گوجرا سے ہوں. گوجرے سے. کیا نام ہے بھیا آپ کا؟ محمد حسن. حافظ محمد حسن. حافظ بھائی آپ کدھر سے؟ میں بھی فیصل آباد سے ہوں، بیسیکلی ویسے گوجرا سے ہوں. دوست ہیں دونوں بھائی ہیں؟ دونوں دوست ہیں. اچھا کیسے تعارف ہوا انجینئر صاحب کا؟ کب ہوا؟ کس نے کروایا؟ 2019 میں سوشل میڈیا کے تھرو ہی ان کا مطلب تعارف ہوا ہے اور الحمدللہ مطلب 5-6 سال ہو گیا آلموسٹ. تو ان کا مطلب ان کو جوائن کرتے وقت عقیدہ توحید اور اہل بیت کی جو محبت ہے وہ کلیئر ہو گئی ہے مطلب ان سے نا.
तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे घर वाले भी अब मतलब 1 बाय 1 उनको मतलब सुनना स्टार्ट हो गए माशाल्लाह। और जो उनका भी अकीदे जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज आप आए, जी जी इतनी दूर से आए, सफ़र किया, सोचा होगा कि चले बैठेंगे अकेडमी में ऐसे ही सुनेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आपको पता है मुहर्रम की वजह से हालात वाक़यात कुछ हाँ जी, आपको हाँ जी, पता है ऐसे ही सिक्योरिटी है। कैसे होते हैं, वो तो इंतज़ामिया की वजह से जी, जी, पाबंदी है, लेकिन फिर भी इंजीनियर साहब ने ये रिक्वेस्ट की कि ये जो लोग आ रहे हैं ना इनको मैंने मिलना ज़रूर है। जी 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 इंशाल्लाह नेक्स्ट अब अभी तो फर्स्ट टाइम हम आए हैं और आलमोस्ट हमारा 2-3 मंथ से बन रहा था ज़हन के मतलब हमने अकेडमी में आना है, तो अभी तो खैर प्रैंक ही हुआ है, तो मगर ये है कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह दोबारा हमने ज़रूर आना है। अब नेक्स्ट वीक या कोई 1-2 महीने तक इंशाल्लाह दोबारा दोनों भाई आएंगे इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल। जी आप साहब, आप मुझे बताएं, जी सर। आज मुलाकात तो होगी इंशाल्लाह, लेकिन वो जो सोचा होगा कि 2 घंटे बैठेंगे, 2.5 घंटे बैठेंगे, हमारा सवाल भी ड्रेस होगा, आज कोई स्पेशल टॉपिक भी डिस्कस होगा, वो कुछ तो नहीं हुआ, क्योंकि इंतजामी मामला है, उनको साथ लेके चलना है। बिल्कुल तो परेशानी तो नहीं हुई, कोई उदासी तो नहीं हुई? बिल्कुल जी है, उदासी भी है, परेशानी भी है, इसमें झूठ वाली बात ही कोई नहीं है। देखिए हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर से प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन नहीं बन रहा था। हमने फिर खुसूसी टाइम बनाया कि यार इस दफ़ा मुहर्रम चल रहा है और जुमे को है ख़ास तौर पे प्रोग्राम, तो बड़ा मज़ा आएगा इस दफ़ा इंशाल्लाह लाइव अहले बैत के ऊपर बयान सुनेंगे इंजीनियर साहब का, लेकिन अब नहीं, अब हमारे नसीब में हुआ तो कोई बात नहीं इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी खुसूसी मुलाकात जो है ना इंजीनियर साहब ने आप लोगों से इंतजामिया से मिल के रिक्वेस्ट करके उन्होंने कहा मैंने इनको मिलना ज़रूर है। यही फ़र्क है, अगर इस जगह बाकी उलमा कराम होते उन्होंने आवाम को छुट्टी करवा देने में कोई मसला नहीं है, आवाम क्या आई या चली जाए, लेकिन इंजीनियर साहब की माशाल्लाह ये है कि उन्होंने रिक्वेस्ट की और उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई, और ये भी उनकी बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह के हज़ूर ये भी बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने हमें टाइम दिया कम अज़ कम ना। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ है। चाहिए। और मुलाकात की अभी कि जाना है? हाँ जी, नहीं मुलाकात करके आए हैं, कर आए हैं? हाँ जी, पिक्चर बना के आए हैं। चले, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। आज जी और कौन है? अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम भैया? मोहम्मद अरसलान जुल्फ़कार। मोहम्मद अरसलान भाई, किधर से? गुजरावाला से। गुजरावाला से जी। आपका क्या नाम भैया? ज़ुबैर सादिक। गुजरावाला से, दोनों दोस्त हो? जी दोस्त हैं। किसने तारुफ करवाया किसको? किसका? इंजीनियर साहब का? मोबाइल नहीं, पहले तारुफ किसको हुआ था? मुझे। आपको हुआ था? भाई को आपने करवाया? ठीक हो गया। अच्छा, इंजीनियर साहब को सुन के क्या चेंजिंग आई लाइफ में? चेंजिंग, बहुत सारी चेंजिंग आई है, इनको देख के बहुत से इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे, बहुत कुछ जो है हमारी नमाज दुरुस्त हो गई, उसके बाद उठने बैठने का तरीका जो है बहुत सा बेहतर हो गया इनसे। सही होगा। अच्छा, आज आप आए गुजरावाला से ये सोच के कि बैठेंगे दर्स सुनेंगे, लेकिन आज आपका दर्स तो रह गया, लेकिन मुलाकात ज़रूर की इंजीनियर साहब ने, तो इस बात की कोई तकलीफ़ या परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं, कि भी इतना टाइम निकाला और ये वाक़े से? कोई भी नहीं। लेकिन ये देख लें आप लोगों के लिए इंजीनियर साहब ने, आपको पता है इंतज़ामी मामला देखने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा मैंने अवामुन्नास को तो मिलना है, ये रिक्वेस्ट की इंतज़ामिया से, और ये सेशन फिर भी हुआ, फ़ोटो सेशन तो हो रहा है ना? बिल्कुल। अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि लोग कहते हैं इंजीनियर साहब गुमराह, फितना, और ये बड़े बड़े आलिम दीन कहते हैं, फिर भी आप लोग सुनते ही जाते हैं इंजीनियर साहब को और आते इतनी इतनी दूर से आते हैं, क्या वजह है? भाई बात असल में ये है कि कुरान पाक है ना, हम कुरान पाक की कोई आयत पढ़ेंगे ना, कुरान पाक में हर चीज़ सच है, लेकिन उसके लिए सच है जो उसको कबूल करेगा, जो उसके ख़िलाफ़ आएगी ना, अगर मैं उन्हें फ़र्ज़ करे कुरान पाक की कोई आयत मेरे ख़िलाफ़ आती है, मैं नहीं मानूंगा। क्यों? हर धर्मी है, ठीक है ना। यही बात है कि जिस बंदे के दिल में ये चीज़ होगी ना कि यार मैंने अल्लाह से मिलना है, ठीक है, मैंने अपने नबी के तरीके पे चलना है, तो वो चीज़ कबूल करेगा चाहे वो कितनी ही तलख क्यों ना हो। लेकिन असल बात ये होती है, अगर किसी ने कबूल नहीं ना करना, उसके सामने आप कुरान ले आए, हदीस ले आए, वो नहीं कबूल करेगा। असल बात ये है। अल्लाह का शुक्र है कि शुरू से दिल में ये था कि नमाज़ पढ़ते थे ना, नमाज के बाद दुआ करते कि या अल्लाह हमें ना सीधे रास्ते पे लगा, जो बंदा सबसे अच्छा है ना, जो बेहतर है, हमें उसके पीछे लगा। और अल्लाह का शुक्र है स्टार्ट में मुख्तलिफ उलमा के पीछे चले, फिर आस्ता आस्ता जो दिल में था ना कि फ़िरकाबाजी नहीं करनी, ठीक है ना, फ़िरकाबाजी से आज़ाद होना है, तो अल्लाह ने आस्ता आस्ता, फर्स्ट टाइम मैंने लॉकडाउन में अली भाई की वीडियो जो है वो देखी थी, सही है, लेकिन ज़हन में वही था कि यार ये भी वैसे ही हैं जैसे सब लोग होते हैं। उसके बाद मैं 2024 में अली भाई की वीडियो देखी थी, मेरे बहन हुई जो है ना, उनके रेफरेंस से, उन्होंने कहा यार अच्छे बंदे हैं, सुना करो। फिर मैंने उनको सुना और आस्ता आस्ता फिर
जैसे जैसे उनको सुनते गए दिमाग खुलता गया, फिर जो हदीस का नंबर बताते थे हदीस पढ़ते थे कि यार ये तो वाकई बात ऐसे है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी था, पहले सुनने से मेरा ताल्लुक़ था। उसके बाद मैंने पिछला जो रमज़ान गुजरा है ना, उसमें मैंने रफ़ाइदैन के साथ बाकायदा नमाज़ शुरू की है और आज तक नमाज़ रफ़ाइदैन के साथ पढ़ रहा हूँ। मैं जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ता था ना, हमने घर चेंज किया। 8 साल जिस मस्जिद में मैंने नमाज़ पढ़ी है, जिस इमाम के पीछे, जब उसने मुझे देखा ना कि ये रफ़ाइदैन के साथ नमाज़ पढ़ रहा है, तो उसने मुझे पूछा ये क्या आप ये किस लाइन पे चल पड़े हो, ये तो तरीका ख़त्म हो गया, ऐसे उससे। उस रात मैं रात 1 बजे तक उस जो कारी साहब थे उनके साथ व्हाट्सएप पे चैट की। उन्होंने मुझे अहादीस के हवाले भेजे, मैंने वो अहादीस निकाल के हाफ़िज़ जी को सेंड की कि हाफ़िज़ जी ये हदीस मनसूख हो चुकी है, नीचे लिखा हुआ है। आप लोग बताते रहे आप लोग ये कहते हो ये तो मनसूख हो चुकी है। तो हाफ़िज़ साहब ने मुझे उल्टा कहा कि यार अगर ये मनसूख हो गई है तो इनको किताबों से निकाल दो। मैंने कहा हाफ़िज़ जी ये आपका काम है यार, हम लोग तो नहीं ना ये काम कर सकते। जब हाफ़िज़ साहब का कुछ नहीं ना बना तो लास्ट पे उन्होंने मुझे ये कह दिया कि आप अपने मुसलमान होने की दलील दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह ये उन्होंने मुझे कह दिया। उन्होंने कहा आप मुसलमान ही नहीं। आज भी वो चैट जो है ना वो मेरे मोबाइल में मौजूद है। चले ये तो हर बंदे की कहानी है, ये मामला। बाकी अल्लाह का शुक्र है मेरे घर में किसी ने भी इस चीज़ की मुखालफत नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे देख के मेरा छोटा भाई अली भाई को सुनता है, मेरे वालिद साहब सुनते हैं, मेरी वाइफ सुनती है, माशाल्लाह मेरे घर में सब सुनते हैं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। दिल को ना एक इत्मीनान है कि यार अब मुझे मैं ठीक हूँ, मैं सीधी लाइन पे। अच्छा, आज आप इतनी दूर से आए, सोचा प्रोग्राम होगा, नहीं हुआ, तो मुझे ये बताएं फिर भी इंजीनियर साहब ने खुसूसी रिक्वेस्ट करके इंतज़ामिया से ये मुलाकात का सिलसिला रखा। ये जिस तरह अवाम नास के बारे में इंजीनियर साहब सोचते हैं, ये मौलवी भी सोचते हैं? नहीं, मौलवी इस बारे में नहीं सोचते, मौलवी उल्टी सोचते हैं। मेरे मामू है ना वो, और ये मैं खुद गवाह हूँ। इंजीनियर साहब ने ये लड़के ना ये टाइम लिया है कि मैंने ये लोग आए हैं ना, कहने को तो एक पोस्ट लगा सकते थे 10 नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं लगाऊंगा, ये जो आ रहे हैं वो आएंगे और मैं तस्वीरें भी खिंचाऊंगा। ठीक है। बाकी हाँ एक बात है कि दिल दुखा आज। हाँ चले, यकीन करें जितना अली भाई को देखना चाहते थे ना लाइव वो नहीं देख सके, बहुत दुख हुआ। मुलाकात कर आए हो ना? मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह, वो सबसे अहम है। क्योंकि जिस तरह अली भाई का एक नारा ना मेरे नबी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे तो शाह कोई नहीं, सबको जलाने के लिए, और अली भाई की एक जो तस्वीर है ना वो सबको जलाने के लिए काफ़ी है। चले, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। आज जी और कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर क्या नाम है? मोहम्मद मनीर। मनीर साहब किधर से? मंडी बोल। आपका क्या नाम है? मोहम्मद ज़ुबैर। ज़ुबैर आप किधर से? मंडी बोल दी। क्या तल्लक है, क्या रिश्ता है भाई के साथ आपका? वालिद साहब है मेरे। वालिद, बाप बेटा? हाँ जी माशाल्लाह। जी जी। आप लेके आए उनको, ये आपको लेके आए? जी मैं एक बार पहले आ चुका था, फिर मैं अबू को आज लेकर आया हूँ। अबू को लेके आए? हाँ। अच्छा जी, पहली बार आए हो? हाँ। अच्छा, जान दे हो कितने आए हो? हाँ। अच्छा, कदों तू जान दे हो? यूट्यूब तो ही तारफ है। कैसा बंदा है? अच्छा बंदा। सारे ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਤਨਾ ਹੈ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਛੱਡੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੰਗ ਸੋ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਤੇ ਦਿਓਬੰਦ ਜਮੀਅਤ ਇਸ਼ਾਅਤ ਤੌਹੀਦ व सुन्नत ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਨਾ ਵੱਡਾ ਅਤਾਉल्ला ਬੰਦਿਆਲਵੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸੀਆਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੁਕਤਦੀ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਰਾਡੀ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਛਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਜੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ। ਅੱਛਾ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਦਰਸ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा हो गया, सही हो गया। चलो मिल आयो। हाँ जी, कोई नहीं, दरस चलो इंशाल्लाह जिंदगी में तो दोबारा लाओ चक्कर इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम भैया? अफनान नाम है मेरा। अफनान भाई किधर से? कराची से आए। कराची से, माशाल्लाह। आपका? मोहम्मद मुजम्मिल। मोहम्मद मुजम्मिल। आप किधर से? कराची से साथ आए हैं। क्या दोस्त हो भाई हो? दोस्त हैं। दोस्त हो? दोनों ही गुमराह? हाँ। अच्छा,
किस ने किसका तारुफ करवाया इंजीनियर साहब का? इसने कराया था मुझे। 1 साल की मेहनत लगी थी इस पर तारुफ कराने के लिए, बहुत लड़ाइयाँ हुई, फड्डे हुए, दोस्ती ख़त्म हो गई, फिर बाद में मान गया किसी ना अच्छा, किसी तरीके कौन से फिरके से तल्लक था पहले? बरेलवी थे, दावत इस्लामी में थे, मस्जिद में दर्ज देते थे, चौक दर्ज देते थे, सराय मदीना वगैरह लगाते थे। मदनी मुन्ने? जी मदनी मुन्ने थे, हरे हरे। ठीक हो गया। तो मदनी मुन्ने को आपने कायल कर लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों मदनी मुन्ने थे। अच्छा, आप भी एक थे? हो गया, पहले हो गया। अच्छा, आप पहले हो गए जी। थे, सही हो गया। अच्छा, आप कराची से आए हो, जी जी। इतना सफ़र किया और आगे आए और आज उस तरह से दर्स हो नहीं पाया। नहीं, ये बस थोड़ा सा हो गया, बस मसला हो गया। लेकिन फिर भी आप लोग ये देखो कि इंजीनियर साहब ने इंतज़ामिया से लड़ के आपके लिए, ये जो अवामुन्नास है उनके लिए तस्वीर का टाइम दे दिया। कहने को तो एक पोस्ट लगा सकते थे अपने ऑफिशियल चैनल पे कि आज दर्स नहीं होगा, 2 दिन पहले पता चल गया था, लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये जो लोग आ रहे हैं इनको मैंने मिलना ज़रूर है। तो इससे तो खुश हो ना कि मुलाकात तो कर रहे हैं। हाँ, मुलाकात हो गई, लेकिन जो दर्द का वो था ना कि अली भाई को देखेंगे, बातें लेकिन आप करेंगे, लोगों के लिए ये छूट है ना, आप लोग दोबारा भी आ सकते हो। जी, बहुत 26 घंटे का सफर है। 27 घंटे सफर करके आए, बहुत बहुत थक गए। चले देखिए, वीडियोस तो आप देखते ही रहते जी, हैं, वीडियोस मेन तो तो चीज़ देखते होता है अली भाई को देखना, अली भाई से मिलना। वो हो गई मुलाकात? बस हो गई मुलाकात। मिली है? अच्छा, बाबा जादी को कभी मिले हो? नहीं, क्यों? फलाने मदीना बहुत दफा गए, मिल नहीं पाया उनसे। वो क्यों? सिक्योरिटी का बहुत मसला होता है उनका, थोड़ा संभाल के रखते हैं उनको। करीब नहीं जाने देते, करीब नहीं जाने देते उनके, मगर करीब से वो रात गए, इतना करीब देखा है, शीशे लेकिन के करीब बॉक्स के अंदर बंद होते हैं, वो उसके अंदर से देख रहे होते हैं हम सारे। अच्छा, हाथ ही लगा सकते हैं? नहीं, करंट मारते हैं? नहीं लगा ही नहीं। शायद नहीं, वो तो शायद सवाल है। मारते हो करंट। जब भी नहीं हाथ लगाने देते। अच्छा, इंजीनियर साहब को हाथ लगाया, जी, सलाम हाथ मिलाया, दिया, सलाम हाथ मिलाया। अच्छा, करंट नहीं मारते? नहीं। ठीक हो गया, चले जी, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। आज जी और कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम भैया? सुफियान, सुफियान। किधर से? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। फैसलाबाद से 2 भाई आगे भी आए हैं। अच्छा जी, हमारे साथ इकट्ठे हो सब लोग? साथ ही आए हैं, यानी कि एक ही बस में। अच्छा, एक ही बस में आए हो। सुफियान, बड़ी तैयारी की होगी कि आज जाऊंगा, मिलूंगा, बैठूंगा, लेकिन जल्दी आपको हम अलविदा कर रहे हैं, परेशानी? नहीं, वो हम रेगुलर सुनते ही रहते हैं और दर्स डेली सुनते हैं। सिर्फ रूहानियत थोड़ी सी मिल गई, प्यार मिल गया। देख लिया ना इंजीनियर साहब को, हाथ भी लगा लिया। जी। अच्छा, ये लेकिन ये चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये इंजीनियर साहब ने, आपको पता है इंतज़ामी मामलात होते हैं, उनको देखना पड़ता है, फिर भी रिक्वेस्ट करके ये टाइम लिया कि मैंने ख़त्म नहीं करना, लोग आएंगे, मैं उनको मिलूँगा। हाँ, इतना तो मुझे मेरा भी रिगार्ड करें और इतना टाइम दें, और ये आप लोगों की वजह से ये आज मजलिस हुई है, अदरवाइज़ ये होनी भी नहीं थी। अच्छा, कैसे जानते थे इंजीनियर साहब को? तारुफ कब हुआ, कैसे हुआ, ये भी तो कुछ बताओ। बस ना, हम जो है ना शुरू से अहले हदीस हैं, तो इनमें और अहले हदीस के मौक़े में कोई इतना फ़र्क नहीं है, तो ये हमारे लिए ईजी था, कोई इतना मुश्किल। लेकिन अहले हदीस तो नहीं मानते, वो तो कहते हैं ये तो सबसे बड़ा फितना और गुमराह। लेकिन मैं कहता हूँ जो अहले हदीसों का जो मुकदमा मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, जो इन्होंने बयान किया है ना, वो उन्होंने किसी ने नहीं किया। हाँ, अहले हदीस अवामुन्नास तो बिल्कुल खरी अवाम है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इल्म जो है ना खालिस है, ये हाँ, इल्म खालिस है इनका, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। अहले बैत छुपाए गए हैं, अदरवाइज बाकी तो मामलात उनके बिल्कुल ठीक है जी। अहले बैत का जो मुकाम है वो नहीं बताया गया उस तरह से। मौला अली की शान, आपको पता है अहले हदीस में ये नहीं होता। नहीं, जब मैंने जितनी तकरीरें सुनी उनमें नहीं मैंने देखा कि ऐसे करते हैं, लेकिन अक्सर जो है ना सही, यानी कि जो इनका मौक़िफ़ है वही उनका है ज़्यादा। हाँ, सही होगा। चलो, मुलाकात कर ली है? हाँ जी, मुलाकात। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। आओ जी, और कौन है? फरहान भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? इंजीनियर मोहम्मद शोएब अराई। इंजीनियर मोहम्मद शोएब अराई। हाँ जी। इंजीनियर साहब किधर से आए हो? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया से? हाँ जी। माशाल्लाह। और पाकिस्तान से? अभी तो रावलपिंडी से रहता, तोबा टेक्सिंग में हूँ। तोबा टेक्सिंग में? हाँ जी। रावलपिंडी क्या है? मैं कश्मीर टूर लगा के आया हूँ ना फिर। अच्छा अच्छा। तो अभी इतवार फ्लाइट है, तो मतलब मिल के आता हूँ इंजीनियर साहब से, आप सब लोगों से। ठीक होगा। हाँ जी। ये सब देख लें, आपकी जो है ना नसीब में मिलना था। हाँ जी। आज प्रोग्राम को नहीं था होना, इंतजामिया ने मना किया हुआ था, लेकिन सिर्फ मुलाकात के लिए प्रोग्राम रख लिया कि इंजीनियर साहब ने आना, उनको मिल लें। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। कब से तारुफ है इंजीनियर साहब का? 2017 से, जब मैं नया अमेरिका में शिफ्ट हुआ था। ठीक है। जब उस वक्त मैंने सुना था एक लेक्चर, मैं ताया ने रेफर किया था, अंधाधुंध पैवरी का अंजाम। जी 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 जी। जिसमें जो है ना बुजुर्गों की अंधी तकलीफ, उनके बारात का पोस्टमार्टम किया है पूरा, जो है ना। तो उस क्लिप के बाद से मैंने सुनना शुरू किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा, आपने बताया आपका ताल्लुक कैलिफोर्निया यूएसए में। हाँ जी। और वहाँ पे क्या हालात हैं? इंजीनियर साहब की फैन फॉलोइंग, वहाँ पे जो मस्जिद पास फिरका वारियत है उधर? और जिस शहर में मैं रहता हूँ ना, सैक्रामेंटो में, वहाँ पे तो बरेलियों, देवबंदियों, शियों की मस्जिदें हैं। हाँ। लेकिन
हुआ ये था कि जो है ना पहले देवबंदी मौलवी कहता है भाई इंजीनियर को मत सुनो, यूट्यूब पे मौलवी आते हैं या फजूल बातें करते हैं। फिर उसने जो है ना बुक्स में आके हज़रत अमीर माविया और जो है ना हिंद जो थी उनके फ़ज़ाइल सुनाना शुरू कर दी जुम्मे खुतबों में। फिर लोग मुतनफ़िर होकर उन्होंने मस्जिद जाना छोड़ दिया, तो कंप्लेंट शुरू कर दी। तो लोगों को हक बात पता होती है, चाहे जुम्मे के खुतबे में जो चाहे बोले, लोग यूट्यूब पे सब सुनते हैं। सबके सामने इंजीनियर साहब जो है वो एक एक कुरान हदीस का रेफरेंस स्क्रीन पे आता है। मैं मिशकातुल मसाबी जो है वो इस्लाम 360 पर खोल के देख लेता हूँ, सब क्लियर हो जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ चले जी। मुलाकात कर ली आज? अभी जाके कर लूँगा, गुड बाय कह के जाऊँगा इंशाल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? वहीद खान। वहीद खान। खान साहब किधर से? मैं लाहौर से। लाहौर से? अच्छा जी, लाहौर से आप जेलम आए हैं। जेलम आया। आज सेशन दो नहीं उस तरह से हो सका जिस तरह होना चाहिए था, अच्छा, तो मुलाकात हो गई हमारी। मुलाकात तो हो गई, मुलाकात लेकिन अच्छी तरीके से कोई मुलाकात आपको इसकी परेशानी या कोई तकलीफ या कोई दुख? इंतजामिया के हवाले से कोई परेशानी नहीं, ना अली भाई की तरफ से तो वैसे ही बिल्कुल ही, क्योंकि गले मिल के और हाथ मिलाया उन्होंने, पूरा गले मिलाया। मैं पीर साकिब रज़ा मुस्तफ़ी से मिला हूँ, तारिक जमील से मिला हूँ और उस बंदे से मिला हूँ, लेकिन उन्होंने उस तरह का प्रोटोकॉल नहीं दिया जहाँ जो मुझे यहाँ पे मिला है। मेरे पास ग्रुप है जो जिसमें हर पोस्ट वगैरह आते रहते हैं कि किसका बयान कहाँ पे हो रहा है, किधर हो रहा है, सब मेरे पास। आपको मैं असल प्रोटोकॉल बताऊं, प्रोटोकॉल ये तो आपने हाथ में ला लिया, मिल लिया। इससे बड़ा प्रोटोकॉल इंजीनियर साहब ने आज जो आप लोगों को दिया है ना, वो ये था कि इंतज़ामिया की तरफ से सख्त पाबंदी थी। सख्त पाबंदी थी बिल्कुल। और यहाँ तक कि उन्होंने 2-3 दिन पहले ही हमें बता दिया था कि ये नहीं हो सकता। लड़ के उन्होंने ये सेशन लिया है, करने को एक पोस्ट लगा सकते थे और ये बात हो सकती थी कि सेशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो सबको पता था इंतजामी मामला है, मुहर्रम का महीना चल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैंने करना है, लोगों ने आना है, मैंने इनको मिलना है। मैं 4 तो ये प्रोटोकॉल है आप सबका। बिल्कुल, मैं 4 से 5 दफ़ा इस अकेडमी में आया हूँ और जैसे पहले मुझे प्रोटोकॉल मिला है वैसे ही आज में कोई तब्दीली, कोई बदलाव, कुछ भी नहीं आया। ये अल्लाह का शुक्र है, मुतमईन है। मुतमईन है? हाँ, मुतमईन। मिल लिया? मिल लिया। चले, आप दोबारा भी इंशाल्लाह ज़िंदगी तो फिर चक्कर लगाइएगा। चले, बहुत शुक्रिया भैया। आ जाइए जी। और कौन है? वालेकुम अस्सलाम भाईजान। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुफियान शीम है, वज़ीराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं। वज़ीराबाद शहर से, गांव से? 7 गाँव है। क्या गाँव? लवेरी वाला। सॉरी? लवेरी वाला। लवेरी वाला। जी जी। अच्छा जी, गांव से आप आए हैं, क्या करने आए थे पहले तो ये बताएं? मुहर्रम में भी आपको आराम नहीं, घर में बैठो यार। असल में जो इंजीनियर साहब के साथ मेरी वाबस्तगी की असल वजह है मेरा, क्योंकि ताल्लुक बेसिकली तहरीक मिनाजुल कुरान से है। सही हो गया। तो जो अहले बैत के ऊपर जो बनु उमैया का बड़ा ऑपरेशन मोहम्मद अली साहब ने किया है ना, वो बड़े बड़े उलमा नहीं कर सके ऐसे। तो अहले बैत के साथ जो उनका एक रिश्ता है उसकी वजह से मेरा भी जो है ना वो उनके साथ लगाव बड़ा है। तो उसके लिए एक शेर है कि हम फ़कीरों का है सादा सा असूल निस्बत, जिसने मिलना हो हैदर के हवाले से मिले। अल्लाह अकबर। तो फिर हैदर के हवाले से ही बस इंजीनियर साहब से मिलने का मुझे एक था, तो इसलिए मैं आ गया हूँ। आज फर्स्ट टाइम आए हैं? जी, मैं पहली दफ़ा। मुलाकात तो हो गई? अभी हो गई, लेकिन सेशन उस तरह से नहीं हो सका, इंतजामी मामलात थे वो देखने पड़ते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, उसके बावजूद जो उनका एक इस्तकबाल कह लें या मेहमानों का अपनों का और जो रख रखाव है कि उन्होंने फिर भी इंतज़ामिया से ये बात करके टाइम लिया है और अपने आने वालों के लिए, मेहमानों के लिए, और जो मोमिन की एक निशानी है कि वो मेहमानों का एहतराम करता है, तो ये उनका भी एक तरह से मेहमानों का एहतराम है जो उन्होंने काविश करके टाइम लिया है। जी जी, एक पोस्ट लग सकती थी अपने चैनल, ऑफिशियल चैनल पे, और बताया जा सकता था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल आसान, ये लोग आएंगे और मैं मिलूंगा। जी जी, ठीक है, मैं सेशन नहीं करता, मैंने मिलना है, ये स्पेशल मेरे लिए आते हैं, उन्होंने लोगों ने प्लान किया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये उनका एक बड़ापन है और उनकी मेहमान नवाजी का एक अंदाज़ है। तो मैं तो सराहूँगा इस बात को भी कि उन्होंने किसी भी तरह से अपने आने वालों को मायूस नहीं किया, चाहने वालों को मायूस नहीं किया। तो अल्लाह करीम उनकी हिफाजत करे और अहले बैत की शान बयान करने की और तौफीकात में बरकतें करे। आमीन। अच्छा, आपसे एक सवाल है, आपने बताया कि मनहाजुल कुरान से आपका ताल्लुक है। जी जी। तारिक कादरी साहब ने भी माशाल्लाह अहले बैत के ऊपर बहुत प्यारा काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आजकल तारिक कादरी साहब दोबारा टीवी पे आके और कुछ नए नए बयान दे रहे हैं और नाम ले बगैर इंजीनियर साहब को, आपको पता है, शैतान का पैरोकार भी कह रहे हैं। ठीक है। वो एक सवाल हुआ ना कि वो बाबू को नहीं मानता, कहते जो बाबू को नहीं मानता ना वो फिर वो शैतान का पैरोकार है। तो ये इस पूरे इस जो है सिचुएशन को आप क्या से समझते हैं कि क्या कह रहे हैं तारिक कादरी साहब? अब इस तरह का वो उनका बिहेवियर
دیکھیں پرفیکشن جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کے بعد شاید کسی میں نہیں ہے. تو ہر انسان کے کچھ منفی پہلو ہوتے ہیں, کچھ مثبت ہوتے ہیں. تو ہم اگر آدھے گلاس کو آدھا خالی کہتے رہیں گے تو اس سے تو بات نہیں بنی, آدھا بھرا بھی تو کہہ سکتے ہیں. تو وہ کچھ علماء کے اپنے تک کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں, اس میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. جو اچھی بات کسی کی اچھی لگ رہی ہے اس کو لیں, اس میں تو کوئی شک باقی کو نہ لیں. آپ جس پہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں لینی چاہیے تو اس کو نہ لیں. بالکل صحیح. اور شخصیت پرستی بھی نہیں ہونی چاہیے. جی اس میں کوئی شک نہیں. اختلاف رائے جو ہوتی ہے یہ زندہ ذہنوں کی نشانی ہوتی ہے. تو جو زندہ ذہن رکھتے ہیں وہ ظاہری بات ہے اختلاف بھی کرتے ہیں ایک دوسرے سے. بالکل. تو اس پہ یہ علماء کا ایک معاملہ ہے, اس پہ میں تو نہیں اس پہ کچھ کہوں گا. صحیح ہو. چلیے بہت شکریہ بھیا, جزاک اللہ. آج اور کون ہے؟ السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ارسلان ہے. ارسلان بھائی کدھر سے؟ میں راولپنڈی سے آیا ہوں. راولپنڈی سے آیا ہوں جی. 8 محرم کا دن ہے, جمعۃ المبارک ہے, اور آپ کو پتہ ہے محرم کے دنوں میں 100 جلوس اور یہ آگے پیچھے رکاوٹیں, آپ پھر بھی آ گئے ہیں. میں نے تو اللہ کر کے یہ دل لیے, یقین کر لیں. میں ہمارا دراصل بجلی کی شاپ ہے, تو وہ اس میں ہم اتنا بزی, تو ہمیں صرف جمعے کی چھٹی ہوتی ہے. میں تو کب سے ویٹ کر رہا ہوں کہ اللہ کرے کسی جمعے انجینئر صاحب کا سیشن ہے, اور بائی چانس میں نے کال کی ہے تو مجھے پتہ لگا کہ جمعے کو سیشن ہے. اور میں تو سارے کام چھوڑ کے الحمدللہ یہاں پہنچا ہوں کہ میرے انجینئر صاحب سے سیشن نہ بھی ہو, میں نے ملنا ہے. حالانکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ سیشن نہیں ہو رہا ہے, کیا سین ہے, لیکن میں یہاں آیا ہوں کیونکہ مجھے انجینئر صاحب سے ملنا تھا. سیشن تو کہ میں تو شاپ میں بیٹھ کے اکثر گھر میں بیٹھ کے انجینئر صاحب کی ویڈیو سنتا رہتا ہوں. وہ جو ریفرنس وغیرہ دیتے ہیں جو وہ میں ویریفائی کرتا ہوں, کیونکہ میری فیملی میں الحمدللہ میں اکیلا ہوں جو انجینئر صاحب کو سنتا ہوں. ہمارے مطلب اہل سنت والجماعت سے ہمارا تعلق ہے, لیکن یہ کہ الحمدللہ اب تو میں کسی فرقے کو نہیں میں اون کرتا, میں کسی فرقے کو نہیں. الحمدللہ ہم بغیر فرقے جیسے ہمارے نبی وسلم تھے, انجینئر صاحب جسے فرماتے ہیں سیم ہمارا وہ سین الحمدللہ. تو اس کے بعد مین چیز یہ ہے کہ انجینئر صاحب ہماری بات ویریفائی کر سکتے ہیں قرآن سے, حدیث سے. وہ قرآن حدیث, ان کے پیچھے قرآن حدیث کھڑی ہے جس کی بیس پہ وہ یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں. ہمیں بچپن سے میں قرآن پاک آدھا قرآن پاک میں نے حفظ کیا, تو مطلب میں مدرسے میں رہا ہوں, میں نے بڑا ہر چیز دیکھی ہے, لیکن کبھی کسی ریفرنس کے ساتھ مجھے آج تک کوئی ایک ریفرنس یاد نہیں ہوا. جب سے انجینئر صاحب آئے الحمدللہ دین کی سمجھ آئی ہے. دین سیکھنے کا مین چیز مجھے شوق ہوا ہے کہ یار میں سیکھوں دین, کیوں نہ سیکھوں. صحیح. اچھا جی, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں صرف انجینئر صاحب کو دیکھنے اور ملنے ہی آیا تھا, آپ کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے آج؟ نہیں. ویسے دیکھیں 300-400 لوگ ہیں, وہ بڑی امید سے آتے ہیں کہ آئیں گے, بیٹھیں گے, سیشن سنیں گے, لیکن یہ آپ لوگوں کی وجہ سے آج انجینئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میں بھی سیشن کے لیے آیا تھا. یہ تو مجھے یہاں کے پتہ لگا کہ سیکورٹی تھریٹس وغیرہ جو بھی ایشو ہے انتظامی معاملات دیکھنے پڑتے ہیں, ورنہ تو میں سیشن لینے ہی آیا تھا. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ میری استاد صاحب سے ملاقات ہوگی, استاد ہی ہم انہیں مانتے ہیں, ان سے ملاقات ہوگی. باقی تو ان کی الحمدللہ ہزاروں ویڈیو یوٹیوب پہ پڑی ہیں, فیس بک کھولیں تو ہزاروں کی تعداد میں ویڈیو آ رہی ہوتی ہے, ریفرنس آ رہی ہوتی ہے. تو اس چیز کی تو نہیں ہے الحمدللہ. سیشن الحمدللہ سارے لے لیتے ہیں. ملاقات ہو گئی الحمدللہ. چلیں جزاک اللہ بھیا. آج اور کون ہے؟ وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا؟ میرا عمر نام ہے. عمر بھائی ماشاءاللہ. عمر بھائی کدھر سے؟ ہم جلال پور سے ہیں. جلال پور گجرات. جی ٹھیک ہو گیا. ویلکم جی جیلم اکیڈمی. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اچھا جی یہ بتائیں کہ کب سے جانتے ہیں انجینئر صاحب کو؟ میں نے انجینئر محمد علی مرزا کو 2002 اور زیادہ 2020 زیادہ 2021 سے میں نے سننا شروع کیا. سر پریشان ہو گئے. نہیں سوری 2020 سے 2021 میں زیادہ سننا شروع کیا تھا. تب میں اپنی کالج میں تھا, اور تب ان کا اسٹارٹنگ تب میں نے زیادہ سوشل میڈیا استعمال کرنا شروع کیا تھا, کیونکہ پتہ ہے ہماری جنریشن کو موبائل تب ہی ملتے ہیں جب ہم کالج میں جاتے ہیں. تو میں نے تب سننا شروع کیا تھا. مجھے سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے ہمیں بہت اچھا ویلکم کیا یہاں پر, اور سب کچھ بہت اچھا تھا, ویل مینیج تھا. اس محرم الحرام کے بھی مہینے میں بھی آپ نے ہمارے لیے سیشن نکالا, کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے. کل 9 محرم ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ سارے میں آپ کو بتاؤں, آپ کو پتہ ہے انتظامی معاملات اور اس وقت جو حالات واقعات انڈیا بھی سارے آپ کو بتایا, انجینئر صاحب نے بھی, خود بھی ہمیں پتہ ہے یہ بڑا مشکل تھا. اور پابندی بھی جو ہے دفعہ 144 کے اس طرح کے معاملات نہیں, ہاں وہ گیدرنگ نہیں کر سکتے. لیکن یہ آپ کو بتاؤں پھر بھی انجینئر صاحب نے یہ لڑ کے میں نے کہا نہیں, ایک پوسٹ لگ سکتی تھی آفیشیل چینل پہ اور بتایا جا سکتا تھا, لیکن انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا. یہ جو لوگ آتے ہیں یہ اتنی دور سے آتے ہیں, یہ بڑی محبت سے آتے ہیں, پلان کر کے آتے ہیں. اور سب سے زیادہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے ہمیں یہاں آنے کی. میں خود ایک انجینئر اسٹوڈنٹ ہوں, اور میں پنڈی سے پڑھ رہا ہوں. پنڈی میں اپنی گریجویشن کر رہا ہوں سافٹ ویئر انجینئرنگ میں. تو میں نے پرسوں واپس چلے جانا تھا, واپس ایک گاڑی کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا اور میں واپس نہیں جا سکا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری یہاں پر حاضری رکھی ہوئی تھی, اور مجھے پتہ نہیں تھا. میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ابھی یہاں پر آیا ہوں, تو میں نے ان کو ہمیشہ لائیو سیشن میں سنا تھا. میں نے کبھی فیس ٹو فیس ان کا میرا دل تھا کہ آج میں ان سے یہ درس سنتا, کیونکہ ایک لائیو سننے میں اور ایک سب بالکل سنتے ہیں نا فیس ٹو فیس, ان میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. تو میرا بہت حسرت دلی حسرت ہے سننے کی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو نیکسٹ ٹائم جی
दोबारा, आप लोग दोबारा भी आ हाँ सकते जी, हैं, लेकिन मैं- मुलाकात हो गई ना। जी मुलाकात होगी। मैं सबसे पहले ये पैगाम छोटा सा देना चाहूँगा कि हमारे अक्सर माशरे में ये कहा जाता है कि अगर आप दीन की तरफ चले जाओगे ना तो ना आपको कुछ खाने पीने का होगा ना कुछ, आप सिर्फ दुनिया के लिए। सबसे बड़ी चीज़ हमारे सामने एग्जांपल है मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, ये इंजीनियर भी हैं और इंजीनियरिंग इन्होंने की है और इन्होंने अल्लाह ताला की दीन के फलाह के लिए भी बहुत काम किया। और हम देखा जाए कि इनको इंजीनियरिंग से इतनी शोहरत और इतनी इज्जत नहीं मिली जितनी दीन की वजह से मिली है, जितनी दीन की वजह से मिली। मैं खुद एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मैं इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ और इसी चीज़ से मैं इंस्पायर होता हूँ कि ये हमारे पास सामने एक एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन ये हमारे सामने एक लाइव एग्जाम्पल है जिनको हम देख के रिलेट कर सकते हैं कि इस इंसान ने दुनियावी से अपनी तालीम भी पूरी की और दीनी भी की, लेकिन अल्लाह ताला की जब राह पे हम चलते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी आती है, लेकिन अल्लाह ताला फिर उनके खुद हिफाजत का ज़िम्मा लेते हैं कि देखिए उनके पास कितने ज़्यादा अटैक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने अभी आप ज़रा देखिए उनकी माशाल्लाह क्या कहते हैं वही उनकी ताकत, वही जुरत, वही कॉन्फिडेंस है सब कुछ। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो मैं नेक्स्ट टाइम भी ज़रूर आऊँगा सेशन लेने। ओके भैया, बहुत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? सुभान। सुभान जी। किधर से? मैं लाहौर से। लाहौर कौन सी जगह से? लाहौर से शादरा से। शादरा से? जी। शादरा से वेलकम जी आपको जेएलएम अकेडमी में। अकेले आए हो? जी अकेला आया हूँ। और 8 मुहर्रम का दिन और जुम्मे का भी दिन और इतना दूर सफ़र भी किया। बस जो है अली भाई की मोहब्बत खींच के ले आई है जेएलएम अकेडमी में। हाँ, मैं आपको बताऊं मोहब्बत अली भाई को वाकई सच्ची है, जी, क्योंकि ऐसी है। इंतज़ामी मामलात में आज उन्होंने दर्स की इजाज़त नहीं दी। मुहर्रम हराम की वजह से हाँ, जुलूस वगैरह पब्लिक गैदरिंग नहीं कर सकते बैठ के, लेकिन फिर भी देखें दर्स तो नहीं हुआ, लेकिन पब्लिक गैदरिंग फिर भी इंजीनियर साहब ने दिली ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। अली भाई को मिल लिया, उनके ये आप साथ लोगों ले के लिए उन्होंने माशाल्लाह। टाइम लिया ऐसे है। ही एक पोस्ट लग सकती थी, दर्स रुक जाना था, दर्स पोस्टपोन हो जाना था नेक्स्ट संडे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये लोग आ रहे हैं, प्लान करते हैं, बड़ी मुश्किल से टाइम निकालते हैं, मैंने इनको मिलना है। मैं खुद एक साल से कोशिश कर रहा था कि अकेडमी में, बस आज मौका मिला तो मैंने कहा भाई चलते हैं। कब से जानते हो इंजीनियर साहब का तारुफ कैसे हुआ? मुझे 1 साल पहले मैं रेस्टोरेंट में बैठा, मैं जॉब करता हूँ कि मैं शेफ़ हूँ किचन में, तो वैसे स्क्रॉलिंग कर रहा था मोबाइल पे, अली भाई की वीडियो सामने आ गई कि जो इस्लाफ के बारे में बात की थी उन्होंने। तो अली भाई ने कहा था कि इस्लाफ वो हैं जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए, जिन्होंने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम की नौज़बिल्लाह को मुबारक में हड्डियाँ। मैंने ये वीडियो देखी तो मैंने वैसे ही व्हाट्सएप स्टेटस पे मैंने शेयर कर दी, तो लोगों के मुझे कमेंट्स आने शुरू हो गए, भाई ये गुमराह, इनको ना सुनो, मतलब कि गालियाँ वगैरह देने लग गए फ़िरका वारियत की वजह से एक बुक्स में आके। फिर जब मैंने दोबारा रिसर्चिंग शुरू की अली भाई का, मैंने यूट्यूब चैनल वगैरह देखा, मैंने फिर सारी, जब उन्होंने कहा कि 4 वीडियोज़ आपने मेरी देखनी, वो देखी, फिर मुझे पता चला कि दीन क्या है। इससे पहले मुझे कुछ नहीं था पता कि बुखारी किताबें भी हैं, नमाज में रफ़े दैन भी होता है, हदीसें भी होती है, कुछ नहीं था पता मुझे अली भाई से पहले, क्योंकि जब हम जुमा पढ़ने जाते थे, ठीक है, उसके बाद जो इमाम साहिब थे वो तो बस अपने बाबों का दीन बताते थे, कुरान और सुन्नत की बात ही नहीं से करते। फिर मैंने अली भाई को सुना किया, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी आज नॉलेज है अली भाई की वजह से है। मैं अली भाई की निस्बत से मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ। अली भाई का बहुत शुक्रिया है, उन्होंने मतलब कि स्टूडेंट को इतनी अच्छी तालीमात दी। तो अभी भी लोग हैं लेकिन जो उनको समझाते हैं कि भाई हक पे आ जाओ, आप अली भाई को ना सुना, आप रियली जो किताबें उनको पढ़ के देख लो रेफरेंस के साथ, आपको खुद पता चल जाएगा। बस जो गुमराह है वो गुमराह है। अब जो घर वाले भी हैं वो भी अभी तक नहीं मानते, वो मुझे अहले हदीस कहना शुरू कर दिया जब मैं नमाज जो है ना वो रफ़ेदैन के साथ शुरू करता हूँ। तो बस इसी वजह से अली भाई का बहुत शुक्रिया है, उन्होंने मतलब कि हमें सीधे रास्ते पर एक चलाने का उन्होंने नज़रिया बनाया। चले, बहुत शुक्रिया जी। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।